ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਮੈਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਭਾਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਸਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਿਫ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 1963 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ BA B.Ed ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮੁਖਮੈਨ ਸਿੰਘ BA MS ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
गुरु चरणों के शीश नवा के फतेह दी शांत करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे मास्टर अजीत सिंह संधू जो पिछले दिन ही सानू सारे परिवार समेत परिवार गुरु प्यारों पिछले दिन ही विछोड़ा दे करके आकार चलाना करके इन्हों के निमित्त सतगुरां दे चरणों दे विच अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो पानी के प्रमाण के दैत सिख रह मर्यादा के दैत गुरु चरणों के विच बैठ करके इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण किया। सतगुरु की बाणी के बख्शिश करते हैं जो उपजो सो बिनस है पर आज क्या काल जो संसार के उत्ते पैदा होया है अज या कल वारी आपको अपनी कोई ना बंदे थी वारी के अनुसार समय के अनुसार जो कुछ भी पैदा होया है सतगुरु जी कहते हैं मिट जाना है जो बढ़िया है उन्हें टह जाना है जो पैदा होया उन्हें मिट जाना है जो आया सो जाग से सब कोई आई बारी है जो संसार के उत्ते आया उन्हें जाना जरूर है। पर गुरु प्यारों असी संसारिक भाषा दे विच आम करके असी वचन आखते हैं फलाने की मौत हो गई फलाना संसार तो कूच कर गया। पर सतगुरु जी धर्म दस्या पातशाह जी की विराही बाणी के अंदर बख्शिश करते हैं कि संसार के उत्ते मरदा कुछ नहीं नहीं शरीर मिटता है आत्मा अमर है आत्मा मिटती नहीं शरीर मिट जाता है शरीर बढ़िया कि रह जाता है। गुरु प्यारे उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की विराही बाणी के मुताबिक गुरु प्यारे सारे धर्मां ने सारे रिजमां ने सनातन धर्म के अंदर इस्लाम जगत के अंदर कम्युनिस्ट सारे ने शरीरक मौत को मौत मनिया पर सिख जगत के अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन इलाही बाणी के मुताबिक शरीर का मिटना मौत नहीं। क्या करो सनातन जगत के अंदर उन्होंने मौत को प्रवान किया है। जदों किसी की मौत होती है तो उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ बनाया है जिन्हों कहा जाता है गरुड़ पुराण उदा पाठ उस समय किया जाता है उस वक्त किया जाता है जो उन्होंने घर के अंदर किसी प्राणी की मौत हो जाती है शरीर मिटता है तो उस वक्त उस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। ख्याल करो हनेरा हो जाए असं लाइट जगाने या चानन हो जाता है तो जो धुंध पैंदी है फिर कोई लाइट नहीं काम करती। सतगुरु कहते जिस रस्ते के उत्ते तू चलना है इस तन को छड्डण तो बाद सतगुरु कहते उत्ते जमा का भी डर है उत्थे घुप हनेरा है उजड़ अंध गुबा रवा एक ते रस्ता उजड़ है भाव रस्ता पदरा नहीं एक अत का हनेरा है जिन्होंने पंचम पातशाह की बाणी के बख्शिश करते हैं। जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चले। केवल गुरु प्यारो नाम ने उसे तेरी रक्षा करनी है। जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चले। रागी संग बैठे फिर सतगुरु जी बख्शिश करते उस परमेश्वर के नाम से सांझ ही नहीं बनाई उस नाम के नाल सांझ नहीं बनाई जिन्हें रस्ते के उत्ते प्रकाश करना सी। फिर सतगुरु जी अगे बख्शिश करते हैं। ख्याल करियो जो पुरानी चढ़ाई कर जाए ना असी बाद मंजा चुकी फिरते हैं बिस्तरा चुकी फिरते हैं तलाइयां रजाइयां भांडे वस्त्र। गुरु प्यारो इहो जिहा कोई भी डाकखाना नहीं जे बनिया जेड़ा मरण तो बाद इहो जिहा कोई दलाल दुनिया के उत्ते नहीं जेड़ा मरण तो बाद किसी के मगर कोई समान भेज देवे। भाई जगन जी सिख होए पातशाह जी के जीवन काल समय
उन्होंने बड़े प्यारे बचन लिखे। वो कहते हैं हथी दईए हथी लईए हथी बनीए बल्ले ऐसा कोई ना जलना जो मूया घले कोई नहीं इहो जिहा जिहड़ा मगरों गुरु प्यारो बिस्तरे भेज देवे जां मंजा भेज देवे जां जूड़ा भेज देवे इस दे भांडे विच चुकी फिरदे। पर सतगुरु जी की कहते गुरु नानक पातशाह ना जल ना सतगुरु जी कहते तेन उत्थे किसी पानी पियाउण वाले ने मगर पहुंचना है। ना जल लेप तुलाइया ना पातशाह कहते लेप रजाई दिती हुई परिवार की तेरे मगर पहुंचनी है। ना तुलाई ना भोजन परका रोआ ना सती प्रकार के गुरु प्यारो कीते हुए भोजन। सतगुरु जी कहते बंदिया तेरी मगर नहीं जाने क्योंकि इत्थे तां आपे बीज आपे ही खाओ। जिहो जे कर्म कमाने हैं उहो जे कर्म तेनों वड्ढने पैने आ क्योंकि ये साडा शरीर बाणी दे विच बादशाह ने कहा खेती है खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए अंत समय संसार दे विचों ओही तेरे नाल जाना है जिहड़ा तू संसार दे विच गुरु प्यारो इकट्ठा कीता। जे पाप कमाउंदा रहा पाप तेरे नाल चलणगे जेकर परमेश्वर दा नाम जपिया नाम नाल जावेगा। सतगुरु जी फिर बख्शिश कर दे भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिंगारो। ते सतगुरु जी कहते फिर हालत कैसी हो जानी है। गुरु प्यारो असीं ते कह दिंदे ना अग्गा किने वेखिया आ गुरु नानक पातशाह जिन्हां ने अगे दी सोझी लै करके संसार दे उत्ते आए सानू फिर समझा रहा गल संगल सिर मारै उभो ना दिसै घर बारो। सतगुरु जी कहते फिर ये नहीं होगा तेरे तेरे गल दे विच जमा ने जदों आ करके संगल पा लिया इस संसार तो चलना पिया फिर दोबारा इस घर दे विच आके तू रह नहीं सकता दोबारा तेनों ये घर मिलना नहीं। गल संगल सिर मारे उभो ना दिसै घर बारो। ते सतगुरु जी कहते इब के राहे जमन नाही पछताने सिर भारो। केवल बड़ा बड़ा सतगुरु जी कहते तेन पछतावा होगा भी मैनू जन्म मिलया मैं सारा जन्म व्यर्थ गवा लिया। ते सतगुरु जी कहते फिर मता तू सोचे दोबारा जन्म मिल जावे। इब के राहे जमन नाही दोबारा तेनों ये मनुखा देही नहीं मिलनी क्योंकि गुरु प्यारे बड़ी कीमती है। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए साडा जन्म हीरिया नालों भी कीमती है। पर सतगुरु जी कहते बंदिया तू कौडियां दे बदले गवा रहा रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कौडियां दे भाव भाव संसारक धंधियां दे तेरा जिहड़ा मनुखा जन्म है सतगुरु जी कहते फिर तुरिया जा रहा है। ते जिन्होंने संसार के उत्ते बेली बनाया ना भी मेरे संसार के उत्ते बेली बड़े है मेरे नाल खलोंदे है। गुरु प्यारे बंदा धन नूं भी अपना आसरा मनदा है परिवार नूं भी अपना आसरा मनदा है सज्जना मित्रां नूं भी अपना आसरा मनदा है शानो शौकत नूं भी अपना आसरा मनदा है। पर सतगुरु जी कहंदे इन्हां दे विचों फिर तेरे नाल खलोण वाला कोई नहीं। बिन साचे को बेली नाही साचा इहो विचारो। सतगुरु कहंदे सच्चे तो बिना किसी ने तेरा बेली नहीं बनना। बाबा फरीद जी का बड़ा प्यारा बचन है आप सारिया संगतां नूं याद होगा। बाबा जी बख्शिश करते हैं धन बाबा फरीद जी का पावन बचन कहते बंदा संसार के उत्ते आया बड़ी वड्डी आस लैके। गुरु प्यारे बाबा फरीद जी का बचन है तो भाई गुरदास जी इस बचन को बड़े प्यारे ढंग के नाल खोलते। बाबा फरीद जी का बचन 3.5 मन देहरी चलै पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन। सतगुरु जी कहते ने 3.5 मन भार पाप साडा ये जिहड़ा शरीर है किवें चलदा है। सतगुरु कहते अन्न पानी के द्वारा आयो बंदा दुनिया विच वत असोनी बन। एक आस लैके दुनिया के उत्ते आया सै वो किहड़ी आस है। भाई साहब भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं भी तू एक आस लैके आया सी मैं संसार से जाके बंदगी करांगा ते मेरा परमेश्वर के नाल मिलाप होवेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी इस बचन को बड़े अनोखे ढंग के नाल बोलते हो कहते परमेश्वर के नाल तो एक वादा किया सी मैनू साजो समान मैनू खाण पीण के पदार्थ रहन वास्ते घर सारा कुछ मेरे नालों पहला संसार के उत्ते होना चाहिए तो फिर मैनू जन्म दें तो मैं संसार से जा करके तेरा वचन मनांगा तेरी ही बंदगी करांगा। भाई गुरदास जी कहते भी जदों तू नरक दे विच पिया पुट्ठा लटकिया होया परमेश्वर नूं आवाज़ां पिया मारदा सै कि मेरे ते कृपा कर मैनू इस नरक दे विचों कढ के संसार ते भेज मैं तेरा ही नाम जपांगा मैं सत्संगत करांगा मैं बंदगी करांगा। भाई गुरदास जी कहते परमेश्वर टुट करके तेरे नाल उन्होंने वचन लिया। भाई गुरदास जी किवें खोलते वचन करते आसन बसन संग देने भाव आसन बसन रहन का समान खाण पीण का तेरे नालों पहला परमेश्वर ने प्रबंध किया भी तू संसार से जाना है। ख्याल करियो
माता के गर्भ के हाले बच्चे ने जन्म लैना है, वो बच्चे के कपड़िया का उसके रहन सहन का पहला प्रबंध कर लेती है। जिहो जिहा मौसम है उस तरह के वस्त्र मावा पहला बना के अपने घर के रख लेती है कि बच्चे ने जन्म लैना है। भाई गुरदास जी कहते आसन बसन संग लीने औ बचन कीने। परमेश्वर के नाम तो एक वादा लिया, की वादा लिया? जन्म लै साध संग श्री गुर आराध है। पातशाह मेरे ते रहमत कर, मैनू नरक दे विचों कढ दे, मैं जन्म लै करके केवल तेरा नाम जपांगा ते सतसंगत करांगा। भाई गुरदास जी कहते परमेश्वर टुटिया, जिन्होंने बाबा फरीद जी कहते आयो बंदा दुनी विच वत सोहनी बाने कास लैके आया कि बंदगी करांगा, परमेश्वर के नाल मिलाप होगा। तो भाई गुरदास जी कहते ज्यों ही संसार के उत्ते जन्म होया ना, काम सारा उल्टा हो गया। इहा आए दाता विसराए। सब तो पहला जो बंदा संसार से आया वो रब के नालों लिव टुट गई, परमेश्वर को भुल गया। किवें आप रोज बाणी दे विच पढ़ते हैं, लिव लगी तृष्णा माया अमर वरताए। पातशाह जी कहते जो परमेश्वर के नालों लिव टुट गई तो माया ने अपना प्रभाव ऐसा पाया। माया आ गई गुरु प्यारों, कदे माता के रूप के, किते पिता के रूप के, किते भैणा भरावां के रूप के, किते धन के रूप के, किते खिडौणियां के रूप के। ये गुरु प्यारों सारी माया संसार के उत्ते। पर सतगुरु जी बख्शिश करते इहा आए दाता बिसराए। सब तो पहला रब नूं भुलिया ते फिर कहते पंच दूत भूत ब्रह्म ब्रह्म ते असाध है। भाई गुरदास जी बख्शिश करते कि फिर बंदा ज्यों ही अपनी उम्र के वड्डा हो गया, पै गया पंजां दे चक्करां दे विच, कदे काम दे विच, कदे लोभ दे विच, कदे मोह दे विच, कदे अहंकार दे विच। साच मरनो विसार जीवन मिथ्या संसार। भाई गुरदास जी कहते बंदिया जाग, वो मिथे समय वास्ते तेनों परमेश्वर ने संसार से भेजा सी, मरण लिखाए मंडल में आए भी इन्ने समय वास्ते तू संसार से रहना है। पर तू इनू अपना जान लिया, इनू स्थिर जान लिया, फिर तेनों संसार दे तू एक दिन चलना पिया। जिन्होंने बाबा फरीद जी फिर बख्शिश कर दिया, मल कल मौत जाए आपसी सब दरवाजे भन मौत। गुरु प्यारो इहो जी है दुनिया के उत्ते कोई दरवाजा इनू बचा नहीं सकता। ख्याल करिया जी 9 दरवाजे साडे शरीर दे है, जिन्होंने पातशाह ने बाणी दे विच किया है 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाए। 9 दरवाजे इस तन दे है। अखां भी दरवाजा है, अखां दे नाल असीं वेखदे हां, ज्ञान अंदर जा रहा है। कान भी दरवाजे ने, सुनते हैं, ज्ञान अंदर जा रहा है। गुरु प्यारो नासिका मूँह ये दरवाजे है। सतगुरु जी कहते हुण जो मौत आई तो गुरु प्यारो धन दरवाजे का भाव होंदा है आसरा। बंदे नूं कोई मुसीबत बन जाए ना तो दौड़ करके दरवाजा बंद कर लवे, उसका बचाव हो जाए तो बाद कहता कि मैं भज के दरवाजा बंद कर लिया, मेरा बचाव हो गया। दरवाजे तो भाव है आसरा। सतगुरु जी कहते बंदे ने धन नूं आसरा बनाया, ज्यों ही मौत आई धन भी इत्थे दा इत्थे पिया रह गया। परिवार नूं आसरा बनाया, मौत आउण दी देर है, परिवार गुरु प्यारो खड़े दा खड़ा रह गया, कोई नहीं बचा सकिया। सज्जना मित्रां नूं रिश्तेदारां नूं प्रभुता नूं आसरा बनाया, कोई भी बचा नहीं सकिया। सारे आसरे तोड़ करके सारे दरवाजे तोड़ के गुरु प्यारो मौत का फरिश्ता आया। मालकल मौत, मालकल कहते हैं मौत के फरिश्ते नूं। मालकल मौत जाए आपसी सब दरवाजे भन। बाबा फरीद जी कहते सारे दरवाजे तोड़ दिते। जो मौत आई कोई भी तेनों बचा नहीं सकिया। अपनिया प्यारिया भाइया अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन, 4 जणियां दे मोढियां दे उत्ते एक दिन संसार दे उत्तों चलिया गया। सो गुरु प्यारिओ सतगुरु ही बख्शिश करते हैं भी बंदिया तू संसार दे उत्ते आया है, इनके राहे जमन नाही पछतानी सिर भारो। जेकर बंदगी नहीं की, सिमरन नहीं की, जीवन नूं साधिया नहीं तो ख्याल करो सतगुरु जी कहते पछतावे तो बिना कुछ भी तेनों संसार के उत्ते प्राप्त नहीं होना। अंत समय तेनों पछताना पवेगा, क्योंकि इस शरीर का मिटना एक अटल सच्चाई है। शरीर बनया एक दिन मिट जाना है। गुरु प्यारो कुछ घड़ियां दे विच भी मिट सकता है, कुछ सालां दे विच भी मिट सकता है। आखिरकार इन्हें मिटना ही मिटना है। जो संसार से आया उन्हें चले ही जाना है। सो सतगुरु जी कृपा करन सानू मनुखा देही परमेश्वर ने दी है। भाई प्राप्त मानुख दियोलिया गोमद मिल की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम साध संगत भज केवल नाम। भाई भगत जी बाणी दे विच बख्शिश करते हैं गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे मानस देही पाई इस देही को सिमरै देव सो देही भज
हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही ला मानस मनुखा जन्म का एको ही ला है। गुरु प्यारो जिथे असीं किरत करते हैं अपने धंधियां नूं सालते हैं परिवार नूं पालते हैं समाज दे विच विचरते हैं ते सतगुरु जी बार बाणी दे विच बार बार समझाउंदे हैं बंदिया बंदगी कर सिमरन कर सेवा कर ताकि संसार दे उत्ते आउण दा तैनूं लाहा प्राप्त हो जाए। क्योंकि गुरु प्यारो बाणी दे विच अनेकां प्रमाण सतगुरां ने दित्ती है कि तैनूं अपने कीते होए लेखा कर्मां दा कीते होए लेखां दा हिसाब किताब देना पैना। लेखा रब नूं बेसिया बैठा कढ वही ते कर्म इहो जिहे करके जाइए भी लेखा जोखा ना देना पवे। सो सतगुरु की रहमत करन सानू गुरसिੱਖੀ जीवन की दात बख्शण असीं बाणी दे नाल जुड़ के बाणी दे अनुसार साडा जीवन बतीत होवे। हे मानियो के मान ने दानियो के दान चवन शत्र तक दे मालिक तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आदियां दे हजूर चरना कमला पास अरदास बेनती जोदी है राणा राम ना गोर है रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर जिहा सिरी लिखिया तेहा हुक्म कुमार कलिया वै नानका सदे उठी जहाज दे पावन वचनानुसार मास्टर अजीत सिंह संधू काक्षा जी पिछले दिनी परिवार में स्थिति विछोड़ा दे करके अकाल चलाना करके आज्ञा चरना देवे जावड़ा जी ने सारे ही परिवार रिश्तेदार साथ संबंधियां ने आज्ञा दे भाने को मिठा करके मनते हुए आज्ञा चरण परसने कीते रखे गए पाठां दे भुगां तो उपरंत आज्ञा दी हाजूरी दे अंदर दीवान सजे ने सजे हुए दीवाना दे इलाही बाणी दे कीर्तन होए गुर शब्द दी विचार होई पातशाह जी बड़ी सुनी बाणी गाते भगवान कल्याणी गुरबाणी दा महात्म विचड़ी होई आत्मा नूं बख्शिश करना अपने चरना कमलां दे विवास अस्थान बख्शिश करना आत्म शांति बख्शनी 84 दे गिर तो बचा लेना जात के प्राणी दा भला करना संसार की यात्रा दौरान पुण्या बेअंत भुला बख्श देनिया वर्षा दी आत्मिक शांति बख्शिश करनी पिछे परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना भाणा मन दे बल बख्शिश करने घर दे विच सुख शांति तंदुरुस्ती दे रोगता बख्शिश करनी सुचे ही परिवार नूं आपसी मेहर प्यार इतबार बख्शिश करने परिवार वालों बेअंत सेवावां कीतियां गईयां कीती हुई सेवा गाते प्रवान कल्याणी अपने दरों घरों सिक्की सिद्ध भरोसा नाम दी दात बख्शिश करनी चरना कमलां दा प्रेम बख्शना कारोबारां दे विच वाधे बख्शिश करनी सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बिन संगतां ने तिन फुल माया भेटा लै करके हाजरी भरी है सबना दी धर्मड़ बेटा हाजर गाते प्रवान कल्याणी सुभातियां दा भला करना सबना दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना भावनावां गुरमत दे अनुसार पूरियां करनियां बख्शियां दातां दे विचों अमृतमय कड़ाह प्रसाद दी देख सजा के हाजर है दर ते प्रवान होए प्रवाने प्रसाद संगतां दे विच वरदान दी आज्ञा बख्शिश करनी शब्द कीर्तन 6 पौड़ियां अनंत साहिब जी के पाठ जी की अरदास कुल चुग मुआफ करनी पावन पवित्र हुक्मनामे दी दात बख्शिश करो जी सिख पढ़दे सुनदे सरबत दा हेवंद हो मन नानक नाम करदी कला तेरे भाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल
वड्डे भाग तेटे गुर देवा कोट पराग मिटे हर सेवा चारण कमल जाका मन रातै सोग अगन तिस जन नाम व्यापै सागर तरिया साधु संगे निर्भव नाम जपो हर रंगे पार तन दुख किछ पाप ना फेरे जाम जंदार नाया नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े उस्ताद मास्टर अजीत सिंह जी संधू कुछ दिन पहला गुरु महाराज चरणा जा बचे हैं। उन्होंने सोगमी समागम गुरुद्वारा सिंह साहब गुरु महाराज चरणा विराजमान साध संगत फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं समझना मेरे लिए जारी दूजी दुख की घड़ी है। एक मेरे पिता सी जो वो चले गए सन वो दुख की घड़ी सी। हुण मैं समझना कि मेरा उस्ताद चले गया तो मेरे लिए दूजी दुख की घड़ी। ये साडे वो उस्ताद सन। मैं इन्हां कोलों पढ़दा रहा। मैनू जो सरदार बाज सिंह बड़े ने दसिया क्योंकि वो इन्हां मैरिड सन लवी सरदार अजीत सिंह संधू इस दुनिया तो चले गए हैं। जिवें अंदर नूं एक गलोरा या वजदा है कि साडा वो उस्ताद चले गया जिंदे करके ही अज कामयाब। मैं समझना वो मैथ के टीचर सन। मैं उन्होंने अच कभी किताब नहीं वेखी। वो जो बोर्ड पर लिखना शुरू करते हैं जिवें रेल शिकाटे मार दी जाती है इस तरह संधू साहब मैथ लिखते हैं जिन्होंने सारिया किताबां मैथ दी जबानी याद सी। वो जिहा उस्ताद जो जाता है वो घर कल्ले नूं घाटा नहीं पैंदा सारे समाज नूं घाटा पैंदा। क्योंकि अज चंगे इंसान चंगे टीचर बहुत घट पैदा होंदे आ जिहड़े बच्चों नूं होनहार ते विद्या दे के जाते आ। मैं वेख्या सी उन्हें जिन्हें बच्चे थोड़े माड़े मोटे कमजोर होंदे सन छुट्टी होने तो मगरों अद्धा घंटा उन्होंने एक्सट्रा लाते हैं कि फलाने फलाने बच्चे ने शाम को अद्धा घंटा दोबारा क्लास लाना क्योंकि थोड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी दिमाग च गल बह जाए तो यह भी समाजिक तौर पर विचर सकन तो चंगिया प्राप्तियां कर सकन तो साढ़े देश का भविख बन। जे अज जे ही चाहिए ना पढ़ाई तो बिना साडा भविख बन जू वो गल झूठी है।
तो जे संधू साहब ने सच्ची शताब्दी देनी है ना, ये मन बना लो आपका जवाब तो पढ़ाना ही आ, पर किसी का भी नहीं अनपढ़ रहते। जे समाज को बनाना, जे सच्ची शताब्दी अज संधू साहब को देनी है। मैं अज मगले बन्ने टीम बैठी आ, क्योंकि उन्होंने सारे हानी सन, सरदार बलबीर सिंह, सरदार पूरन सिंह, साढ़े तमानी साहब, कुहारा साहब, एक टीम सी बड़ी वधिया जीरे स्कूल च। मैं मेरा मन जोड़ा अज संधू साहब बारे मैं की कह सकता, मैं तो कहना अजे भी वो 200 साल जो होने चाहिए हैं, जिन्ने काबिल तो वधिया इंसान सन, पर यह मौत गुरु के हथ च अपने हथ च। उन्होंने जन्म जो 10/2/1948 पिंड मराका पाकिस्तान में होया है। उतों उदों आके हिंदुस्तान के 9 साल के बच्चे आ गए, उस वेले पढ़ के तो फिर मुड़ के प्राप्तियां करनिया, फिर BEd करनी, BEd तो बाद टीचर लगना। ये देखो ये भी एक उस वेले की कहानी आ जदों पढ़ाई करनी बहुत औखी सी। इस वेले मैं समझना कि संधू साहब के माँ प्यो को भी अं शर्तां ते पूरीआं करते, क्योंकि जिन्होंने संधू साहब को पढ़ाया तो पिता सरदार करपूर सिंह उन्हें देन सी, माता गुरदेव कौर। मुड़ के इत्थे आके पिंड आसफ वाला 1947 बन तो बाद इन्होंने इत्थे आके आसफ वाला बला ले आपकी पढ़ाई की। नौकरी इन्होंने 18/6/1966 पिंड दौलतपुरा तो स्टार्ट की, तो फिर सुर सिंह वाला नौकरी की। 1969 जीरे जीवन मल सीनियर सैकेंडरी स्कूल बतौर मैथ टीचर नौकरी करते रहे। 28/2/1997 रिटायर हुए, तो उस तो मगरों फिर इन्होंने आपके कारोबार शुरू किया, आपका काम किया। मैं समझना ली जे अज परिवार इस बुलंदियां ते आ तो वो संधू साहब करके आ, सरदार अजीत सिंह संधू करके जेडे साडे पिता वर्गे हैं। फिर इन्होंने घर ब्याह तो मगरों 3 बच्चियों ने जन्म लिया, 2 बेटियां ने जन्म लिया। परमात्मा ने परिवार दिता, फिर परिवार को सारे सामना ब्याहना समेटना ये जिम्मेवारियां सी। फिर उन्होंने अखीरला जिहड़ा समा सी 1 फरवरी 2021 वो गुरु साहब के चरणों जा बराजे। तो इत्थे जिहड़े मैं समझना भी अज उन्होंने साथी भी इत्थे बैठे ने, तो असीं जिहड़े काफ़ी जिहड़े स्टूडेंट होणगे, मैं समझना अज बैठे लड़कियां भी साडियां इत्थे जिहड़ियां कोई ट्यूशन भी पढ़दियां, बच्चा पढ़ाउंदे सन, बहुत काबिल सन, इस करके वो भी इत्थे हाजिर होणगे। सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गहरा सदमा पहुंचा है। इत्थे साडे विच जैदार इंद्रजीत सिंह जी जीरा साबका मंत्री वो भी बैठे ने, साडे अवतार सिंह मीना जी के लड़के गुरवीर भी बैठे ने। उन्होंने भी इत्थे ट्रक ऑपरेटर जीरा हरीश कुमार जी गोगा, उन्होंने शोकमता आया, पैलेस यूनियन जीरा उन्होंने आया, हजूर साहब यात्रा सेवा सोसायटी, तो उन्होंने आया श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी, उन्होंने आया समूह पेंशन एसोसीएशन जीरा, उन्होंने आया सीनियर सिटीजन काउंसल, वो ने साडे सुरजीत सिंह संधू, क्योंकि उस वेले वो भी उत्थे इन्हां दे नाल संसाथी सन। अज वो प्रधान आरती एसोसीएशन जीरा दे ने, क्योंकि जीरा ही आड़त का काम भी नाल सरजीत सिंह संधू करते सन। इस करके पुराना प्रेम जिहड़ा उन्होंने शोकमत आया। जसविंदर सिंह बराड़ चक छेरे वाला, डॉक्टर जिंदर सिंह अं बाबा भी कहते हैं कई, मैं समझना कि उन्होंने हर धर्म का ज्ञान बड़े सूझवान ने, इस करके उन्होंने नाम लेना जरूरी सी। गुरुद्वारा सिंह सभा समूची कमेटी वालों शोकमत आया, मार्केट कमेटी जीरा वालों शोकमत आया, रागी जथे वालों स्पैशल तौर लिखा भी असी भी साढ़े वालों भी संधू साहब को जरूर ये शोकमता करना। मां चिंतपूर्णी मंदिर जीरा वालों उन्होंने वालों भी शोकमत आया। इस करके समा है ही है, पर सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ पंच सरपंच म्यूनसिपल कमेटी ਦੇ ਸਾਰੇ भी जिन्ने भरा सरपंच जिन्ने होर वीर आए, सारिया बीबियां भैनां सारिਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ घर ਨੂੰ आके घर ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, बल मिलता है भी साढ़े नाल इन्नी संगत खड़ी आ। इस करके तुहाडा इत्थे आउण ते धन्नवाद, सारे उन्हें साथियों का धन्नवाद। ये सच्चे पातशाह क्योंकि अरदास तो मोरों
ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। परमात्मा अपने चरणों में वसतन बख्शे। सारे ही इतने आए सज्जनों को, रिश्तेदारों को, भैन भाई घरदियां लोग फुलका प्रसादा चाह पानी हर पुरानी वीर ने छक के जाना। इतने आते जय धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक अज बड़ा साहब मगर आए ने कोई सेवा है, सेवा एक शमशान घाट को 11,000 रुपया, जीरा सिंह सभा गुरुद्वारा 11,000 रुपया, तो जिथे वो पढ़ाते रहे ने स्कूल सीनियर स्कूल सैकेंडरी स्कूल साडा सावन वाल जीरा उन्होंने 11,000 रुपया, तो दुस्तार की जी रस्म है तो वो अपनी जी अदा करनी है। वो वीर आपका अपना वीर आवे निका आके आपकी रस्म पकड़ी है वो आपकी की जाए। सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा बेनती है, हर प्राणी ने प्रसादा तो चाह का लंगर छक के जाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो साढ़े अति सत्कार जो मास्टर अजीत सिंह जी संधू जो सानू पिछले समय के सदीवी विछोड़ा दे गए सन, अज उन्होंने अंतिम अरदास है और असी सचखंड श्री हजूर साहिब यात्रा सेवा सोसायटी के वलों सारे मैंबर उन्होंने अंतिम अरदास के शामिल हुए हैं और उन्होंने असी सारी सोसायटी के वलों शरधा के फुल भेंट करते हुए परमात्मा के चरणों में यो अरदास बेनती करते हैं कि उन्होंने गुणा अवगुणों ना विचारते हुए उन्होंने अपने चरणों के निवास स्थान बख्शे और पिछे परिवार को भाणा मनने का बल बख्शिश करते हुए हमेशा चढ़ती कला के जीवन बख्शिश करें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।